پہلی مرتبہ میری پاسٹر امینول صاحب سے ملاقات غالباً 2011 میں میرا ایک دوست تھا، اس کے وسیلے سے ہوئی اور میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا۔ ان کے ساتھ پادری امین صاحب بھی اس اپارٹمنٹ کے کمرے میں مجھے ملنے کے لیے آئے اور جب چرچ آئے یہاں پر لوگوں کو دیکھا تو میں اس وقت سے لے کے اگر ابھی تک چیزوں کا موازنہ کروں تو خدا نے اس چرچ کو بہت زیادہ برکت بخشی ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ پہلے صرف صدر بھائی اور چند اور لوگ ان کے ساتھ پرستش کرتے تھے، لیکن خدا نے بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت اور برکت بخشی ہے کہ وہ گائیں، پرستش کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج میری صبح میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں ان سے کہہ رہا تھا، وہ اسی چرچ کا حصہ ہیں، میں ان سے کہہ رہا تھا یار اب نیو لائف میں کلام سنانے کا مقصد مطلب نیو لائف میں کلام سنانا ایسا لگتا ہے کہ کسی سیمنری کی کلاس میں آپ نے جا کے پیغام ڈیلیور کرنا ہے۔ یعنی اب لوگ مزید کلام کو سمجھتے ہیں اور کلام کو جانتے ہیں اور کلام کے اس لیول کے اندر ترقی کی ہے انہوں نے، اور ویسے بھی خدا نے چرچ کو بہت برکت دی ہے اور پاسٹر بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں ان سے صبح بات کر رہا تھا، میں نے کہا اب تو یوں لگتا ہے کہ بھائی سیمنری کی کلاس میں کلام سنانا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں ساری چیزوں کے لیے۔ آج میرا پیغام ہوگا، 2-3 خواب بھی اس میں بتاؤں گا، جیسے یوسف کا خواب ہے، مریم کا خواب ہے، کیونکہ کرسمس کے حوالے سے پیغام ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پیغام شروع کروں، یہ بھی سمجھے ذرا گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلام نہیں ابھی میں نے شروع کیا۔ میں بیٹھا میں ایک بات سوچ رہا تھا، چونکہ خوابوں کے تعلق سے تھی، تو کسی نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ بعض اوقات خواب ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں خواب وہ ہیں جو ہمیں سونے ہی نہ دیں۔ آئیے بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے۔ آج کا جو پیغام ہے وہ پرانے عہد نامے سے میں شروع کروں گا، میکا کی کتاب سے۔ پرانے عہد نامے میں میکا کی کتاب کا حوالے سے میں اس پیغام کو شروع کروں گا۔ میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اور آج کا پیغام ہے جی، جس کا عنوان ہے یسوع مسیح کی پیدائش اور عیسیٰ کی پیدائش میں کیا فرق ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش اور عیسیٰ کی پیدائش میں کیا فرق ہے۔ یہ پیپر 2 ہیں اور کلام بھی مختصر ہے، اس لیے آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ نکالیے میرے ساتھ میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت۔ کلام کے کلام میں لکھا ہے، میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور 2 آیت۔ لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ ثابت، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ سارے بولے آمین۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ آمین کا یہ مطلب ہے۔ بائبل مقدس خدا کا زندگی بخش، زندہ، لا تبدیل، لا خطا کلام ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا فہم، انسان کی حالت، راہ نجات، گناہگار کا انجام اور ایمانداروں کے لیے خوشی پائی جاتی ہے۔ اس کی تعلیمات مقدس، تواریخی حقیقت، احکام لازم اور فیصلے اٹل ہیں۔ فہم و دانش کے اصول کے لیے اسے پڑھیں، سلامتی کے لیے اس پر ایمان لائیں اور پاکیزگی کے لیے اس پر عمل کریں۔ یہ آپ کی رہنمائی کرے گی اور آپ کی راہوں کو روشن کرے گی۔ قوت کے لیے خوراک اور دل جمی کے لیے اطمینان کی حامل ہے۔
सियाहों का आसा है, सियाहों का नक्शा है, ये सिपाहियों की तलवार है। बाइबल की बात कर रहा हूं जी, ध्यान से सुनिए। सिपाहियों की तलवार है, सियाहों का नक्शा है और मसीहों का मंशूर है। इसमें आसमान खुला, जन्नत मिलती है और दोजख के दरवाजे आश्कारा किए गए हैं। इसका अजीम तरीन मजमून यसु मसीह है। हमारी बेहतरी का खाका इसी के अंदर है और इसका इख्तिताम खुदा के जलाल पर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ा करें, पढ़ा करें, पढ़ा करें और पढ़ते ही जाया करें। आमीन। आज का जो कलाम का मौजू मैंने आपको बताया है कि ईसा मसीह की पैदाइश में और यसु मसीह की पैदाइश में क्या फर्क है। मैं एक जगह पर काम करता था, मेरे साथ काशी बैठा हुआ, ये भी वहीं पर जॉब करता था। तो हमारा एक दोस्त बना वहां पे, और जब वो मेरा दोस्त बना, पता मुसलमान रोजा रखते हैं तो सहरी लेकर आओ, सॉरी वो रोजा ब्रेक करने के लिए खाना लेकर आते हैं, तो मैंने भी खा लेना करना, मैंने कहा चलो खा लो की है। लेकिन जब क्रिसमस आया ना, तो उसने मुझे क्रिसमस मुबारक ही नहीं कहा, मैं तो उसको ईद मुबारक कही। तो जब उसने मुझे ना कहा, मैंने उससे गिला किया, मैंने कहा यार आप मेरे कैसे दोस्त हो कि आपने मुझे ग्रीटिंग्स ही नहीं की, क्रिसमस मुबारक नहीं कही, आप मेरे कैसे दोस्त हैं। तो उसने मुझे कहा कि हमें अलाउ नहीं है। मैंने कहा मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा यार आप इतने अच्छे बंदे होकर हमारे साथ आपको क्यों अलाउ नहीं है। वो कहने लगे जी, खैर उन्होंने वो रीजन बताए, लेकिन मैं उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने इसके मुतालिक जानना शुरू किया। कल रात मैंने इसके ऊपर तहकीक करना शुरू की कि ईसा की पैदाइश, इसके बाद आखिर में मैं मसीह के बारे में बात करूंगा, लेकिन ईसा की पैदाइश जो कुरान में दर्ज है, याद रखिए इस पैगाम से देने का मकसद किसी की दिलाजारी नहीं है, बल्कि जो बुनियादी अकायद है बाइबल के और कुरान के, उनके बारे में सिर्फ बात करूंगा। ईसा की पैदाइश के लिए कल रात मैंने बहुत स्टडी की और मैंने जानने की कोशिश की कि क्या क्या चीजें कुरान फरमाता है ईसा की पैदाइश के बारे में। मैंने पढ़ना शुरू किया सूरा 19, जिसे सूरा मरियम कहते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था और उस वीडियो क्लिप में जो एक स्कॉलर था वो बता रहा था कि देखे मुकद्दसा मरियम, जिसे मुकद्दसा मरियम कहते हैं हम, मरियम के बारे में कहते हैं पूरी की पूरी सूरा कुरान के अंदर लिखी हुई है और बाइबल में उसका मुख्तसर सा जिक्र है। सूरा मरियम के 19वां चैप्टर जिसे हम कहेंगे, उसमें लिखा है कि उसके बाप का नाम, अब मुकद्दसा मरियम के बाप का नाम देखिए, कुरान के मुताबिक मुकद्दसा मरियम के बाप का नाम इमरान है। इसके ऊपर उन्होंने अल इमरान एक और भी चैप्टर लिखा हुआ है, और उसके बाप का नाम इमरान है। वो अल्लाह की इबादत करती थी। हालांकि मोहम्मद की पैदाइश जो है वो लगभग जो है वो 570 में हुई और उन्होंने ये नाम थ्रो किया कि जी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। कुरान के मुताबिक वो अल्लाह की इबादत करती थी, बचपन ही से वो जो है वो पाक औरत थी। और फिर कहा गया कि वो हारून की बहन थी। मूसा और हारून की बात कर रहा हूँ, यानी आप कितने साल पीछे चले जाएं, पुराने अदब में खरूज के मुताबिक उनकी भी एक बहन थी मरियम। कुरान के मुताबिक ये हारून की बहन थी। और इन्होंने पैदाइश जो मसीह की पैदाइश के मुताबिक लिखा है कि सहरा में हुई, जब इनके पास जिब्राइल आया और इनको आकर उन्होंने कहा कि आपको बेटा होगा, और इस तरह से उसकी उन्होंने उनको जाकर सलामती की दावत दी। और जब इनकी डिलीवरी का टाइम आया, ये सहरा में चली गई और वहां पर जब इनको दर्दे ज़ाव लगे तो इन्होंने कहा कि अच्छा है कि मेरी डेथ हो जाए। और फिर अल्लाह ने इनको फरमाया कि चूंकि एक दरख्त था खजूरों का इनके पास, अल्लाह ने कहा इसको जोर जोर से हिलाओ। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर कोई देखना चाहे तो जाके देख सकता है। अल्लाह ने कहा इसको जोर जोर से हिलाओ, फिर ऊपर से खजूरें गिरी, फिर उन्होंने वो खजूरें खाई, फिर उनको पानी दिया और उनके लिए खाने का इंतजाम अल्लाह ने किया। और जब वो वापिस आई अपने रिश्तेदारों के अंदर, तो उन्होंने कहा कि तेरा बाप तो नेक शख्स था और तूने कैसे बच्चा पैदा कर लिया, तूने कोई ज़िना तो नहीं किया किसी के साथ। तो लिखा है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसने उसको
لوگوں سے باتیں کرنا شروع کی اور اس نے کہا میں نبی ہوں اور یہ عورت پاک ہے. اور وہ اسکالر اپنی اس تقریر میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے کہ مقدسہ مریم کا مقام کتنا بلند کیا ہے خدا نے، اور کس قدر جو ہے وہ ان کا مقام بلند ہے، اور کس قدر جو ہے وہ کس قدر مریم کے درجے کو بڑھایا گیا ہے. اب دیکھیے مسیح کی پیدائش کے بارے میں دیکھیے، جو حوالہ میں نے پڑھا وہ میکا کی کتاب کا حوالہ ہے. میکا کی کتاب یہ پیشن گوئی کی گئی کہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ پیدا ہوگا وہ یہودا کے قبیلے میں سے ہوگا. آپ نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا نا، لکھا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے کا، بولیے گا زور سے بولے دلیری کے ساتھ، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ وہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے. وہ یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوگا. اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اس طرح سے تو میں اس اسکالر کی بھی بات سن رہا تھا، اور پھر میں نے جب اس کے اوپر اسٹڈی کی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی مریم کا پیر الشبا کے گھر میں پڑائی تو وہ روح القدس سے بھر گئی اور وہ نبوت کرنے لگی کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھے کیا کہیں گے جی؟ مبارک کہیں گے اور میرے خدا کی ماں میرے گھر میں آئی ہے. سو مسیح کی پیدائش کے لیے جو ہے مسیح کی پیدائش کے لیے پیشن گوئی جو میکا کی کتاب میں سے آپ کے سامنے میں نے پڑھی، آپ کے سامنے ملاحظہ فرمائی، وہ یہی ہے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ یہودا کے قبیلے میں سے ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ اس کی ماں کا نام مریم ہے. پھر اس کے باپ کا نام لکھا ہے یوسف ہے. اور پھر اس کا قبیلہ بتایا گیا. مریم کے باپ کا نام عمران نہیں، بائبل بتاتی ہے اس کا نام جو ہے وہ یواخم ہے. اور پھر بتایا گیا کہ وہ پاک عورت تھی. پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کو جو ہے وہ اس کو خبر دی کہ تیرے بیٹا ہوگا. پھر اس کے بارے میں لکھا ہے وہ یہودی مذہب سے اس کا تعلق تھا، وہ جوئش جو مذہب تھا اس کو فالو کرتی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ یسوع نے جب وہ پیدا ہوئے تو وہ بیت لحم کو ناصرت کو گئی، وہاں پر بیت لحم میں جا کے وہ پیدا ہوئے. تو جب میں نے یہ ساری اسٹڈی کی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ یقین نہ کیجئے کہ مسیح جو ہے، جب ہم سے دوست عموماً باتیں کرتے ہیں، ہمارے مسلمان دوست، ہم ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم مسیح کو مانتے ہیں. نہیں، آپ مسیح کو نہیں مانتے. جس مسیح کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، وہ قدرت والا ہے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا. اور جب فرشتہ یوسف کے پاس آیا نا تو اس نے کہا یہ بچہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا بخشے گا جی؟ نجات بخشے گا، نجات ملے گی، نجات اور چھٹکارا ملے گا، نجات ملے گی اس سے. اور اگر آپ کو یاد ہو گنتی کی کتاب میں ایک جگہ پر ابھی بچے گا رہے تھے، وہ جو بھائی تھے مارٹن، وہ کہہ رہے تھے کہ بولیں یشوع، جو مسیح کا صحیح نام ہے وہ یشوع ہے، جو انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ کیا گیا جیزس، اور اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا یسوع. اور یشوع کا مطلب کیا ہے؟ گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت میں نون کے بیٹے کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. نون کے بیٹے کا نام تھا ہوسیا، جس کا نام جو ہے وہ یشوع رکھا. اور یشوع موسیٰ نے اس کو پکارا اور اسے وہ نام دیا گیا. یشوع کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ، نجات دینے والا. یہوہ نجات ہے. کیوں اس کا نام بدلا گیا؟ کیونکہ وہی وہ بندہ تھا جو کینان کے اندر لوگوں کو لے کر جانے والا تھا، اور یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور وہ ہمیں آسمان پر لے کر جانے والا ہے. بولو ہیلیلویا، ہیلیلویا. alright, so یسوع مسیح جو ہے وہ مرکز ہے بائبل کا. کرسمس کا جو کرسمس کی جو جان ہے، یہ سمجھ لیجئے مرکز ہے، وہ مسیح یسوع ہے. مسیح یسوع، کسی خادم نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کرسمس ٹری مرکز نہیں ہے. پاکستان میں تھے، وہ ٹی وی والے آتے پوچھتے بھائی کرسمس ٹری کیوں لگاتے ہیں آپ؟ وہ ادھر
कई हम ऐसी फजूल में लोग बोलते हैं जी ये फलाना पौधा है, ये वो पौधा है। अरे क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि मसीह आए इस दुनिया में, गॉड इन फ्लैश। पिछले दिनों हमने सुना ना वो पैगाम, एवरलास्टिंग गॉड, वो खुदा है जी। उन्होंने कहा ये अपने लोगों को उसका नाम देखें। आप ज़बूर गाते हैं ना 18, वो क्या लिखा है, आप पे ऊपरों हाथ बधा के मिन्नू रब बचावेगा। वो रिडीमर है, अगर आप उसको उर्दू में पढ़े, वो मुझे छुड़ाने वाला है। तो मसीह के नाम का मतलब यही है कि वो छुड़ाने वाला है, वो रिडीमर है, वो खुदा, गॉड इन फ्लैश है वो। एनीवे, सो आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इसको आप समझ के जाए। अगर कोई सवाल है आपका, लेट मी नो, बाद में हम मुझसे मिल सकते हैं। एक बंदा था, समझाने के घर से ये किसी ने मिसाल मुझे सुनाई। उसने कहा कि मसीह जो है वो क्यों इस दुनिया में आए। तो वो बंदा जो है ना वो चर्च से बड़ा बागी था। तो एक दिन उसने क्या किया कि जब वो चर्च नहीं गया तो उसने देखा बाहर जो है ना परिंदे उड़ रहे हैं और ठंड बड़ी सी। आज मैं सुबह उठा, मैं बाहर भी क्या, मेरा तरा निकल गया। मैं कहा इतने बहुत ठंड होनी है। मैं उत्ते कोट पा आया थे, आके मैंने गर्मी लग गई। मैं अल्लाह छड्डो पर बाहर बड़ी सर्दी थी। जब बाहर सर्दी थी तो उसने देखा परिंदे उड़ रहे हैं। कोई परिंदा इधर से उधर जा रहा है, उसको बैठने की जगह नहीं थी मिल रही। उन परिंदों को कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या करना चाहिए। और बता ये रहा हूं मसीह आए क्यों। तो वो परिंदे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उस बंदे को जो है बड़ा तरस आया उन परिंदों पे, और वो बंदा गया और परिंदों से कह रहा है, गैराज खोला, अपना गैराज खोला जिसमें कार रखते हम, और परिंदों को कह रहा है, परिंदों इधर आ जाओ इस गैराज के अंदर। अब परिंदे तो नहीं समझते ना, वो तो परिंदे हैं जी, क्या समझेंगे। उन्हें एक कपड़ा चुकिया, परिंदे अनुसारे कर रहे, इधर आ जाओ। परिंदे कहां समझेंगे। अरे परिंदों को कोई समझ नहीं आ रही। परिंदा ताड़ियां मार रहा, दाने पा रहा, परिंदे कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो परिंदे हैं। तो उसके ज़हन में ख्याल आया, काश मैं परिंदा ही बन जाऊं तो फिर मेरी ये सुनेंगे। इसी तरह से खुदा ने नबी भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, काजी भेजे, ये समझ नहीं थी आ रही। आखिर में उसने अपना बेटा भेज दिया। आखिर में उसने कहा मैं जाऊंगा नीचे, इनको जाके रास्ते पर लेकर आऊंगा। दुरुस्त में कहने लगा था इनको दुरुस्त करूंगा, वो कह रहा मैं इनको रास्ते पर लेकर आऊंगा, उनको राह दिखाऊंगा ताकि ये शेल्टर में आ जाएं, ताकि ये बच जाएं, ताकि ठंड से बच जाएं। मैंने बताया ना बाइबल जहन्नुम के दरवाजों को आश्कारा करती है। उसने कहा कि उनकी मदद करना चाहिए। खुदा ने उनको इसलिए भेजा ताकि वो मुझे और आपको मेरे और गुनाहों से क्या बख्शे जी, निजात बख्शे। निजात बख्शने वाला खुदा जो है, इसलिए उन्होंने भेजा मसीह को। और बाइबल बताती है कि जब खुदा ने, देखें आप अपने बच्चों को बेस्ट चीज देते हैं, हम अपने बच्चों को बेस्ट चीज देना चाहते हैं, इसीलिए खुदावंद ने जो है वो हमें मसीह इस दुनिया में भेजे। और मसीह की पैदाइश बिल्कुल बाइबल के मुताबिक हुई, कोई उसके अंदर रद्दो बदल नहीं हुई। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए। जो लोग कहते हैं ना मुकद्दसा मरियम के बारे में कुछ, आइए यशायाह की किताब का एक हवाला पढ़ते हैं, 7वां बाब। यशायाह की किताब 7वां बाब, 10वीं आयत। आज़ाया 7:10। ऑलराइट। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर। खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर। उसकी थोड़ी सी आयतें छोड़ के आगे पढ़ तो 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इम्मानुएल के नाम का क्या मतलब है जी, खुदा हमारे साथ है। इम्मानुएल के नाम का मतलब यह है खुदा हमारे साथ है। और लूका की इंजील का मैंने बताया ना, लूका पहले बाब की 21वीं आयत से लिखा हुआ है कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से आके क्या कह रहा है कि तेरे बेटा होगा। और वो पाक और कुंवारी थी, पाक दामन थी, और उनसे आकर वो कह रहे तेरे बेटा होगा, तू बेटे को जन्म देगी
اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے وہ پیدا ہوگا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے جو پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی کی گئی ہزاروں سال پہلے، وہ آ کر نئے عہد نامے میں پوری ہو رہی ہے کہ مسیح پیدا ہوں گے اور خدا کا ایک نمائندہ ایک کنواری کے پاس آیا اور وہ آ کر اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، وہ مولود مقدس خدا کا. جنہوں نے بیٹا کہنے دی مشکل ہے نا، وہ یہ آیت پڑھیں. پچھلے دنوں میں قاضی صاحب نے پچھلے پیغام میں تثلیث کا بھی ذکر کیا. تو بیٹا کہاں پر نظر آ رہا ہے جی؟ اس کی پیدائش سے پہلے کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ خدا کا بیٹا ہے. جب یسوع نے بپتسمہ لیا، اوپر سے کیا آواز آئی؟ آسمان سے، اور روح القدس آ رہا ہے. تثلیث نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ؟ اتو آواز آ رہی ہے، اتو کوئی سپیکر نہیں سی لگایا. یہ میرا بیٹا ہے، یہ مولود مقدس خدا کا ایک نمائندہ جو لڑکی مرد سے ناواقف ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، جو مرد کو نہیں جانتی، خدا کا ایک نمائندہ کھڑا ہو کر اس سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور وہ خدا کا مولود مقدس بیٹا کہلائے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا جی؟ ایمانویل، یشوع، وہ نجات دہندہ ہوگا. اور مریم کا ایک بڑا اچھا مجھے یہاں پر بہت خوبصورت مریم کا رویہ لگتا ہے. اس نے کہا دیکھ میں خدا کی، میں تیرا عبدی بندی ہوں، میرے لیے تیرے. اچھا جب یوسف کو خواب آیا، یوسف کے پاس بھی فرشتہ گیا خواب میں، یوسف سے بھی ملاقات ہوئی. اب یوسف کو جب یہ خبر ملی نا کہ مریم کے بچہ ہونے والا ہے، وہ پریگننٹ ہے، اب یوسف پریشان ہو گیا اس بات سے. وہ کہنے لگا یار معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا، معاشرے کو کیا بتاؤں گا، ہماری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ آئیے اس کو پڑھتے، اس آیت کو بھی پڑھے. متی کی انجیل کے پہلے باب میں، متی کی انجیل Thank you Lord, hallelujah. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پہلے باب میں میرے ساتھ چلیے، لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب ان کی منگنی مریم سے ہوئی تھی تو لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ. 19 آیت میں لکھا پس یوسف جو راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا. اب یوسف کا رویہ دیکھیے. یوسف کو پتہ چل گیا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے اور یوسف اسے چھوڑنا چاہ رہا ہے. مریم کہہ رہی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یوسف کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیسے یہ ممکن ہوگا، میری اس سے شادی نہیں ہوئی، ابھی ہمارے ازدواجی تعلقات نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یوسف کا رویہ دیکھیے کہ یوسف اسے چھوڑ دینا چاہ رہا ہے، لیکن خواب میں خدا کا فرشتہ اسے نظر آیا. خدا نے دیکھا. یاد رکھیے جب آپ پوری طرح سے خدا کے ساتھ کسی میریکل کے لیے جڑ جاتے ہیں نا، خدا آپ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا رستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے. مریم نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں خدا کی بندی ہوں، جو تو کہہ رہا ہے، اگر خدا کی طرف سے یہ فرمان ہے، اگر خدا ہی کی یہ مرضی ہے، اگر خدا ہی یہ چاہ رہا ہے تو میں تیار ہوں. مریم کے اقرار کی وجہ سے یوسف جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا، خدا نے فرشتے کو بھیجا اور خدا نے سارے رستوں کو آسان کر دیا. بولو ہیلیلویا. موضوع کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ کلام کے ساتھ اگری کیا جائے. بعض اوقات ہم موضوع پانا چاہتے ہیں لیکن کلام کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کرتے، کلام پر اگری نہیں ہوتے، کلام کو سمجھتے نہیں، کلام کے اوپر رکتے نہیں، کلام پر ٹھہرتے نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر کس پر بنایا جی؟ چٹان کے اوپر بنایا ہوا ہے. یاد رکھیں جب بنیاد مضبوط ہوگی پھر مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن آپ کی بنیاد کس پر ہے جی؟ یشوع کے اوپر ہے، چٹان کے اوپر ہے، اور وہ آپ کو گرنے سے اور پھسلنے سے اور ڈوبنے سے بچائے گا. بولو ہیلیلویا. سو بتا یہ رہا ہوں کہ یوسف کا رویہ کیسا. پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو لکھا ہے کہ ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے پاس
कोई जगह नहीं थी कि वो ठहर सके। उनको लिखा है एक जगह पर अस्तबल में जगह मिली, सराय के अंदर अस्तबल था जहां पर पंजाबी में जिसे खुरली कहते हैं, उनको वहां पर ठहराया गया और अस्तबल में उनको जगह मिली और बाइबल बताती है उन्होंने वहीं पर जीसस को रख दिया। जगह ही नहीं है, हमारे घरों में जगह ही नहीं है, ट्री लगाई हुई है लेकिन यीशु के लिए सही तरह से जगह नहीं है। मैंने देखा कई खूबसूरत ट्रीज लगी हुई हैं। कल मैं ऊपर थोड़ी चला रहा था तो मैंने देखा इतना खूबसूरत लाइटा ही लाइटा ने हर पासे ट्री लगी हुई है, लेकिन जगह नहीं है जिंदगी में। जगह का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जगह पहले से फुल है आगे से। अगर पहले रेंट आउट की हुई है किसी ने, वहां पर कोई रह सकता जी? पहले से रेंट कोई भर रहा है, अंदर कोई और है। एक छोटी बच्ची ने यीशु को कबूल किया और वो कहने लगी, उसे एक पास्टर ने पूछा कि बेटा आपने यीशु को कबूल तो कर लिया है, अब अगर शैतान आपके दिल का दरवाजा खटखटाएगा तो आप क्या करेंगी? आप दरवाजा खोलेंगी? उसने कहा नहीं, मैं यीशु को कहूंगी जाके दरवाजा खोल, ते शैतान आप ही भाग जाएगा। हालेलुया। सो लिखा सराय में जगह ना थी। आज हमारे घर में एक बड़ी अच्छी बात है, अपने आप कलाम में लिखा है कि कलाम में लिखा हुआ है कि अपने आप को खाली करो। हम कहते हैं खुदावंद मुझे खाली कर। खुदावंद के मैं तेनू किवें खाली करा? तू आप ही करना है अपने आप को खाली। बुरी आदतां तो, लड़ाइयां तो, चुगलियां तो, भैड़े कमां तो, चर्च बैठा दिमाग किधर हो रहे, ओ इत्थे आओ, वही चर्च में रहना। मैं किसी ट्रेनिंग पर गया, एक गोरा मुझे कहता है यार मेरे लिए दुआ कर। मैं क्या क्यों? कहता मैं ट्रेनिंग में हूं पर मेरा दिमाग कहीं और है। तो मैं उसकी बात सुन के ना मुझे थोड़ी हंसी भी आई। सो बताने का मकसद यह है कि सराय में जगह नहीं है। हमारे घर में, हमारी जिंदगी में और चीजों के लिए जगह है, दोस्तों के लिए जगह है, बच्चों के लिए जगह है, और लड़ाइयों के लिए जगह है, शैतानियों के लिए जगह है, बदनीयती के लिए जगह है, और गंदी चीजों के लिए जगह है। बाकी चीजों के लिए हमने रेंट आउट पे दी हुई अपनी जिंदगी, लेकिन खुदावंद के लिए जगह नहीं है। क्रिसमस, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा क्रिसमस हो तो एक नई शुरुआत कीजिए, अपने अंदर, अपने दिल में जगह बनाइए। जेड़ा तो सब तो भैड़ा बंदा लगता है ना, ਉਹਨੂੰ ਜਾ को यार भाईन तुसी सब तो अच्छे हो। बाजू का अच्छा कई दफा ऐसे भी होता है कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, पर फिर भी लोग हमें ऐसे ही पता नहीं क्यों गासिप करते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आपने अपने आप को खाली रखना है, आपने अपने आप को खुदावंद के लिए अवेलेबल रखना है। लिखा है कि सराय में जगह नहीं थी, आपने जगह बनानी है। खुदावंद ये नहीं कहना खुदावंद मुझे खाली कर, खुदावंद भरता है, खुदावंद भरता है हमें। वो रूह से भरता है, अपने कलाम से भरता है, वो अपनी कुदरत से भरता है, वो हमें हिकमत से भरता है, वो हमें दनाई से भरता है, वो अपने जलाल से हमें भरता है। खुदावंद भरता है, खाली हमें खुद ही करना है, खाली हमें अपने आप को करना है। खुदावंद खाली बर्तनों को भरता है। आपको याद है जब लीशा के पास एक औरत आई, उसने कहा मेरा बंदा तेरे साथ जब मिनिस्ट्री में था और उसने इतना कर्जा उठाया, कर्जा चौक के मिनिस्ट्री से काम करता रहा, और अब जब उसकी डेथ हो गई है, मेरे दो ही मुंडे ने, मेरे दो बेटे हैं जिनसे इसने कर्जा लिया था, अब कर्जा जिनसे लिया हुआ वो आया और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना वो कर्जा वापस करो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को बंदी बना कर ले जाऊंगा। तो उसने कहा तेरे घर में क्या निकला? थोड़ा जा तेल है। उसने कहा खाली बर्तन दूसरों से उधार ले ले और फिर क्या करना, तेल को उंडेलती जाना, दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करना, बच्चों को अंदर लेना और फिर तेल को उंडेलती जाना। जितने खाली बर्तन थे वो सारे के सारे खुदा की कुदरत से और इस मोजे से वो फिल हो गए। आपके भी जितने खाली बर्तन आप लेकर आएंगे, एक से कलाम सुना रहा सी, कह रहा सी भांडे तुम्हारी प्रॉब्लम है, भरने लाओ बर्तन आपका मसला। आप खाली बर्तनों को लाइए, भरना खुदा की कुदरत से है, भरना उसकी कुदरत से, भरने वाला वो है। आप कितनी बड़ी चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे, कितनी बड़ी आपको बरकत चाहिए। आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं खुदा
कर भी सकता है कि नहीं। लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं तो तुम्हें बचा न सके, मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं। बर्तन आपका काम है जितना मर्जी, रिक्वेस्ट जितनी मर्जी बड़ी लेकर आइए, उसके अंदर कुदरत है कि वो सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया। सो बाज़ औक़ात हम छोटे छोटे ना कोलियां देश की लेके हरिद्वार आ जाने हैं, वो पुरानी देश की पुरानी गल्लां खुदा मेरे बच्चों में बरकत दे। किसी दिन ये भी कि खुदा तूने दे दिया है, हालेलुया, मेरा प्याला लबरेज हो गया है, भर गया खुदावंद, भर दिया तूने, मेरा प्याला लबरेज हुआ है। सो बता ये रहा हूं कि खुदावंद भरता है। अगर आपके जगह खाली होगी तो वो उस खाली जगह में आएगा। लिखा है कि वो दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा है जी, दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो। अंदरों बंदा के पान में सुता, मेरा और को काम है, अंदर से कोई और बाहर निकले, क्या ख्याल है। सो दिल का दरवाजा खुदावंद खटखटा रहा है, जो मुझे और आपको खोलने की जरूरत है। अगर मैं और आप अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे अंदर खुदावंद आएगा। फिर ये क्रिसमस भी ना जब हम अभी सेलिब्रेट करेंगे, ये भी सारे का सारा पिछले सालों की तरह ही चला जाएगा, ये भी ऐसे ही गुजर जाएगा। सो बता ये रहा हूं कि मसीह जो है वो बाइबल के मुताबिक निजात देने वाले हैं। मसीह खुदा का बेटा है। लिखा है कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, वो खुदा का बेटा है। और बाइबल बताती है कि गॉड इन फ्लैश है, और बाइबल बताती है कि उनके आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है खुदा की राह तैयार करो, खुदा की राह तैयार करो। वो ये नहीं कह रहा यीशु की राह तैयार करो, वो कहता है यशायाह का वाला पढ़े लिखा हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है कि खुदावंद की राह। उधर ये तो नहीं लिखा यशवा की राह, लेकिन जो ट्रांसलेशन की गई है खुदावंद निजात देने वाला है, उसका रास्ता तैयार करो। वो खुदा है जी, वो कोई नबी नहीं है, बल्कि वो नबियों से बढ़कर है। बोलो हालेलुया। वो नबियों से बढ़कर है, वो रसूलों से बढ़कर है, वो कुल इख्तियार का मालिक है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। उसने कहा मैं बचाने आया हूँ, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ, मैं निकालने के लिए आया हूँ, मैं आसमान पर लेकर जाने के लिए आया हूँ। जो मुझ पर, देखे किसी रसूल ने ये नहीं कहा, किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा, किसी नबी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। किसी ने ये नहीं कहा कि जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे, और वो उनको जिंदा करने की कुदरत रखता है। पैगंबर आए, नबी आए, अरे यही तो मामलात थे फरीसियों के। उनके साथ वो कहते थे तू किसके इख्तियार के साथ ये तालीम दे रहा है। उसने कहा मेरे पास इख्तियार है, मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, और मैं अपनी जान खुशी से दूंगा। बोलो हालेलुया। ये सारी की सारी बातें सिर्फ बाइबल के अंदर दर्ज है। तो जब मैं और आप बगौर इसका मुताला करते हैं, जब कभी आपकी बात हो, देखे मुझे एक बड़े अच्छे खादम थे, उन्होंने कहा अगर आप इंजील का पैगाम दूसरे लोगों के पास नहीं लेकर जाएंगे तो दूसरे लोग पैगाम लेकर आपके पास आएंगे। क्या आप उस वक्त जवाब देंगे? बल्कि उनको उसी अपनी जो है वो खुशखबरी की गवाही दे, उनको बताएं क्या हमारे साथ मिले। और खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया है, जिसे बाइबल खुदा का बेटा कहती है, जिसे बाइबल कहती है वो खुदा है, जिसे बाइबल कहती है सारी धरती का इख्तियार उसके पास है। आइए उसका जन्मदिन हमारे साथ मिलकर मनाइए, आइए उसके जन्मदिन पे हमारे साथ सेलिब्रेशन कीजिए। याद रखें हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी सेलिब्रेशन, सारी चीजें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। अगर मसीह नहीं है तो फिर ये सारी खुशियां, ये सारी रौनकें बेरौनक हो जाएंगी। अगर मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं होगा, फिर हम इस साल भी क्रिसमस मनाएंगे और फिर अगले साल भी क्रिसमस मनाएंगे। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ
कि हकीकी तौर से मसीह को कबूल कीजिए, हकीकी तौर से उसके पैरोकार बनिए, हकीकी तौर से उसकी तालीमात पर अमल कीजिए, हकीकी तौर से उसकी पैरवी कीजिए, हकीकी तौर से उसके पीछे आइए, हकीकी तौर से उसका पल्ला पकड़ लीजिए, हकीकी तौर से उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ये करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि बाइबल में जन्नत मिलती है, बाइबल में आसमान का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। उसने कहा दरवाजा मैं हूं। कौन कौन जाना चाहता है आसमान पर? इस क्रिसमस पर अगर आप अपने आप को खाली करके यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, फिर आसमान पर चले जाएंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू। आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। अगर 2 मिनट के लिए आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे तो वो भी अच्छा है। आइए खुदा उनसे दुआ करते हैं। खुदा तू बड़ा मददगार हमारा खुदा है, तू मदद करने वाला है, तू हमें बचाने वाला है, तू गुनाहों से छुड़ाने वाला है। तेरा नाम ही निजात दहिंदा है। तू छुड़ाता है, बचाता है, हमारी मदद करता है। तू हमें बचाने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करें। कहे खुदावन मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं ये क्रिसमस है खुदावन जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे। खुदा आए खुदावन मैं चाहती हूं मेरी खाली जिंदगी भरी जाए। खुदा मैं चाहता हूं मेरी खाली जिंदगी भरी जाए। अगर जगह खाली है, किसी ने कहा खाली ज़हन और खाली दिल शैतान का कारखाना होता है, उधर कुछ ना कुछ बनता रहता है। आइए यीशु को मौका दें, पाखरू को मौका दें, कलाम को मौका दे कि वो हमारे दिलों और हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ बसे। आइए खाली जगहों को फिल करें, खाली जगह करें और फिर उनको फिल करें खुदा की कुदरत से। खुदाम यीशु मसीह के नाम से मैं सारी कांग्रीगेशन पर तेरी बरकत चाहता हूं। मैं सारी खुदावन कांग्रीगेशन पर तेरी बरकत चाहता हूं। और तेरा कलाम है खुदावन जो इन्होंने सुना है खुदा, ये इनके दिलों में घर कर जाए खुदा। ये कलाम इनके अंदर उतर जाए खुदा। ये कलाम बंद में से गुजरे खुदा। तेरा कलाम जिंदा है, हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु के नाम से खुदा तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में उतरे खुदा। इन्हें बरकत मिले खुदा, इनके साथ जाए खुदा, इनके आगे आगे चले खुदा, इन्हें रोशनी नसीब हो खुदावन। और तेरा हाथ इन पर बढ़ जाए, तेरा नूर इन पर चमके, तेरी बरकत इन पर आना शुरू हो जाए, तेरा जलाल इन पर छाना शुरू हो जाए। तेरी हजूरी से इनके बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाए खुदावंद। तू है खुदावंद इनके दरमियान में इज्जत और जलाल पाए। ये घर में हो मुबारक हो खुदा, ये अपने खेत में मुबारक हो खुदा, ये लोगों के लिए मुबारक हो खुदा, ये भाई से बरकत हो खुदा। आज के बाद है खुदा जब ये तुझे कबूल करते हैं, जिस चीज को भी हाथ लगाए वो बढ़ना शुरू हो जाए खुदा। कमियां जाए खुदा, घाटे जाए खुदा, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और तेरा बेटा इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। खुदा आप सबको बड़ी